Hello friends, this is Shah Afzal. I am teaching in Limra International School in ETA as a science teacher. Today's topic is class 9th biology tissue. In this video, we have to learn about the fundamental informations about the tissue. In this video, we will talk about types of plant tissues. So plant tissues further classified into two groups. First group is meristemic tissue. Second is permanent tissue. First is meristematic tissues and second is permanent tissue. So the meristemic tissues is divided also into three groups. First is apical, second is lateral, and the third is intercalary. Just like us, permanent tissues also divided into two groups. First is simple permanent tissue and second is complex permanent tissue. What is the simple permanent tissue? It has the only one type of cells. And complex, that means it have the many types of different cells. So the simple permanent tissues also divided into three groups. The first group is there parenchyma. Second is collerenchyma. Third is sclerenchyma. Just like this, complex permanent tissues also divided into two groups. First is xylem and second is phloem. These tissues also known as the vascular tissues of the plant. So today we will talk about only the meristemic tissues. So all friends, see the meristemic tissues. The cells of this tissue similar in structure. जो ये टिश्यूज होते हैं इनके जो सेल्स होते हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं. दे हैव थिक सेलुलोज सेल वॉल. इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही पतले सेलुलोज की बनी होती है. स्फेरिकल, ओवल एंड पॉलीगोनल इन शेप. इनकी जो शेप्स होती है वो इरेगुलर होती है. वो किसी भी तरीके की शेप हो सकती है, चाहे स्फेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, ट्रायंगुलर हो सकती है, मे भी किसी भी तरीके की उनकी ये शेप हो सकती है. नेक्स्ट पॉइंट इज देयर दे अकर ग्रोथ पार्ट ऑफ द प्लांट्स. ये कहाँ मिलते हैं? ये ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, जो प्लांट्स की जो ग्रोइंग पार्ट होते हैं ये उन पर टिश्यूज मिलता है. तो हम लोग पूछ सकते हैं कि मेरिस्टेमिक टिश्यू कहाँ मिलता है, तो आप बता सकते हैं कि मेरिस्टेमिक टिश्यू जो है वो ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट्स पर अवेलेबल होता है. विच टाइप्स ऑफ ग्रोइंग पार्ट्स? जस्ट लाइक अस स्टेम एंड fruits. So all students, see the diagram of the meristemic tissue on your screen and do the practice of this diagram, because this diagram is very necessary for you. Maybe possible this diagram in your exam. Okay, so now we will talk about the types of. So see guys friends, this is the type of meristemic tissue. This is the first type of meristemic tissue is apical meristemic tissue. So what is the apical meristemic tissue? It present on tip of stem and roots. ये कहाँ मिल जाते हैं हमको? ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट्स, जो के पार्ट प्लांट्स के ग्रो करते हैं, जो कि स्टेम होता है और हमारी रूट्स होती हैं उनके टिप पर मिलते हैं, यानी कि उनके टॉप पर मिलते हैं. सेकेंड पॉइंट, दिस टिश्यू लीड्स टू इलॉन्गेशन ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स. ये टिश्यू जो है वो स्टेम और रूट्स को लॉन्ग करने में, इलॉन्गेशंस करने में हेल्प करते हैं, उनके सेल्स को इंक्रीजमेंट देने में हेल्प करते हैं. थर्ड पॉइंट, दे प्रमोट द इंक्रीजमेंट इन द हाइट ऑफ प्लांट्स. ये प्लांट की हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. इसी वजह से इट इज नोन एज द प्राइमरी ग्रोथ. इस ग्रोथ को हम प्राइमरी ग्रोथ भी बोलते हैं. व्हेन वी sow a seed in the soil, after some time soil is germinate, that one stem, one part is growing up. So this is the part of the stem. So top of the stem and top of the root, where is the present the apical meristemic tissue? It is helping growing
इट इज हेल्पिंग इंक्रीजमेंट इन द हाइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यू जो है वो टिप ऑफ द स्टेम और टिप ऑफ द रूट पर होता है, जो कि प्लांट को हाइट इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ मेरिस्टेमिक टिश्यू। Lateral. This is the lateral meristemic tissue. Where it is the present? It occurs along the side of longitudinal axis of the plant. All students, see the diagram on your screen. बहुत अच्छे से इस डायग्राम को देखिए और इन डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। इसी डायग्राम में देखते जाइए कहाँ पर लेटरल है, कहाँ पर एपिकल है, कहाँ पर आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक टिश्यू प्रेजेंट है। सेकेंड पॉइंट, इट गिव्स राइज टू वेस्कुलर टिश्यूज। यहाँ पर ही वेस्कुलर टिश्यूज निकलना शुरू होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज वो होते हैं जिनको हम ट्रांसपोर्ट टिश्यूज भी बोला जाता है। प्लांट्स के हर पार्ट में फूड एंड वाटर को प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन्हीं टिश्यूज को हम वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट कॉजेस ग्रोथ इन गिर्थ ऑफ द स्टेम। ये स्टेम की ग्रिथ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। इन टिश्यू को हम सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। जैसे एपिकल को हम लोग प्राइमरी बोलते थे, शुरुआत वाला होता था, और ऐसे ही सेकेंडरी जो आपका टिश्यूज है उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू को। ओके बच्चों, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड मेरिस्टेमिक टिश्यू इज इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक टिश्यूज। It present at the internodes and the base of the leaves. कहाँ मिलते हैं ये? शुरू होती है उस वाले ग्रोइंग पार्ट को आप इंटरनोड्स बोलते हैं, और ये बेस ऑफ द लीफ यानी कि आपकी जो लीफ होती है उसके बेस पर ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। It produces an increase in the length of an organs. ये किसी भी ऑर्गेन्स को यानी कि प्लांट्स के ऑर्गेन को इंक्रीजमेंट देने में हेल्प करता है। Which types of organs? Such as जैसे कि leaves and internodes. So all students see the diagram very carefully and learn the diagram and learn the meristemic tissues and its part also very carefully, and we will meet in next video with new topic, permanent tissues. So all students revise very carefully. Thanks for watching. Bye bye.